In a country like Pakistan, if your operations, your facilities, your people, your assets on the ground, assets fixed, assets mobile, they are not protected with a proper security which is designed. Pakistan doesn't need politicians. Pakistan needs servant leaders. मैं हमेशा ये वाली बात करता हूँ महम कि अगर आपको पाकिस्तान के हर बच्चे में अपनी औलाद, अगर हर बुजुर्ग में आपको अपने माँ बाप, अगर हर मर्द और औरत में अपने बहन और भाई नहीं नजर आते ना, पाकिस्तान जब तक सक्सेसफुल नहीं होगा, जब तक ये चीज़ हो नहीं सकती. गोरे में और हम में या किसी भी कौम में और हम में फ़र्क ये है, वो रेज करते हैं कि बेटा तूने परफॉर्म करना है. दे गो फॉर एक्सीलेंस, विच इज़ वाई दे आर एक्सेलिंग एज नेशंस. हमें चाहिए वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स है, लेकिन हम उसके लिए काम नहीं करना. कभी भी ज़िंदगी में तुम सब कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर सकोगे. बट अगर आप किसी और पर्सनैलिटी को पढ़ लेते हो, learn from others' experiences. your wisdom starts increasing in exponential ways. And Maham, honestly speaking, you could have the best ideas in the world. If you don't know how to explain them, you're not going to achieve much. True. Sahi hai. I've seen best universities produce kids who don't know anything about real life. अस्सलाम वालेकुम फहद साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है जी, बिल्कुल ठीक ठाक. सबसे पहले तो ऑफ कैमरा कॉन्वर्सेशन ही बड़ी मज़ेदार हो गई है. आई गॉट अ क्लास बट नेवर माइंड. मुझे यहाँ से शुरू करना है कि हम मोहसिन पे भी बात करेंगे, बट अ लिटिल बिट बैकग्राउंड ऑफ योर्स बिफोर, सो लॉट ऑफ पीपल हु आर वाचिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम, उनके लिए अ बिट इंट्रो अबाउट यू एंड योर बैकग्राउंड बिफोर मोहसिन. Okay. How far back do you want the background to go? सो मुझे जल्दी जल्दी से ये जानना है कि स्कूलिंग कहाँ की है, कॉलेज कौन सा था, बचपन कहाँ गुजरा, शहर. Acha. So I grew up in Karachi. I went to a school in model in Mohammadi Society, and then I went to college in Behriya College. Behriya College Karachi pehle, and then Behriya College Islamabad. I grew up in a military family, like the entire military background. My father was in the Navy, and my dada was in the Air Force. He basically left the Royal Air Force at the time of partition and moved from there to Pakistan to join the Royal Pakistan Air Force. And then on मेरे ननियाल वाली side maybe they first left Patna to go to Dhaka, and then Dhaka से fall के बाद they came to Pakistan. So Pakistan really means a lot for us, right? And then my father served for 39 years in the Navy, retired as a vice admiral. So I grew up in Karsaz, and then when we got posted to Islamabad for the first time, I discovered what greenery is, and I was like, ये अच्छी जगह है काफ़ी. So then we moved to Islamabad. I went to university at Mohammadi Jinnah University. Nothing to write home about. बिल्कुल पढ़ाई का कोई शौक़ नहीं था, in the sense कि बिल्कुल शौक़ नहीं था. अच्छा. हाँ, मतलब पढ़ने का शौक़ था, पढ़ाई का शौक़ नहीं था. So I was always into reading. I was always into doing extracurricular things, but लेकिन अगर academic knowledge की pursuit बोलो तो I wasn't really into it much. और घर से भी इतना कोई हमारा वो नहीं था, वो टिपिकल वाला सीन था कि बस मतलब लोगों का कॉन्फिडेंस शैटर नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए. सो मतलब we had a huge tolerance for failure. हाँ, in the house we had a huge tolerance for failure, in the sense के I think my father was very flexible in this. वो टिपिकल वो जो हम लोगों ने एक वो स्टीरियोटाइप बनाया हुआ है ना कि फौजी बाप जो है बड़ा सख्त होता है. हमारे अब्बा तो दोस्त है, ठीक है. सो मतलब he raised us like boys, right? मतलब his boys वाला सीन ना कि ठीक है यार, मतलब हो जाता है. If you were ever in a situation where you know we didn't get good grades, तो हम लोग रात में फिर खाने पे बाहर जाते थे सारे के वो ट्रूप्स का मोरल डाउन ना हो जाए वाला सीन ना, तो वो उस तरह करने वाले. So he had like this huge tolerance for failure, and I think we availed that. Like both me and my brother availed that to the fullest. हम दो ही भाई हैं, and we pushed it to the max. मतलब मैंने इंटर 3 साल में किए थी because मतलब बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं था. फिर पहले एक यूनिवर्सिटी में गया, उधर से आई गॉट ड्रॉप्ड आउट, एंड देन आई हाँ मतलब Dropped out for? we took the scenic route when it came to degrees. So मतलब we stopped and smelled the roses, and we enjoyed life on the way. So we did everything, right? And again the focus was a lot of other things other than core पढ़ाई. तो फिर
BCS करने के लिए 2 दफ़ा अटैम्प्ट की और कोई शौक़ नहीं था, मतलब आई कुडंट पिक्चर माई सेल्फ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर दी एंटायर डे. एंड देन फ्रॉम देयर आई फाइनली रियलाइज्ड जब बिल्कुल 1 GPA हो गया कि ब्रो ये तो मसला हो जाएगा. सीरियस हो गया अभी. हाँ, तो फिर मैं उस वक्त जो है ना, फिर देन आई केम टू I switched to the BBA side and that's where I really started working and excelling and मतलब पढ़ाई में तो फिर भी मतलब जितना पीछे नुकसान कर चुके थे उसमें क्या ही रिकूप करते. लेकिन I was really fortunate. I used to clear interviews really well. So when I went in for my first interview, it was at KPMG on an outsourcing project, and I cleared that. KPMG is a huge name, brings a lot of structure to your life. I had great mentors. Like one of the people was somebody who studied at IBA and gone on to PNG and PSO before coming to KPMG. So he taught me, he trained me, and his name is Shahamat. He's still a good friend of mine, still somebody I look up to. And but that's when I hit the wo na, I think मेरा बचपन में I used to do, it doesn't show anymore, but I used to be really great at squash and tennis and all of those games, right? Golf, squash, tennis, swimming, ये सारी की सारी चीज़ें. And Muhafiz really hasn't given me time to work out much, but it's like a focus area now. But उस ज़माने में I think that competitive streak that sports bring out, that really brings it out, right? And squash is a really competitive sport where मतलब you're basically on thinking along all fronts, right? मतलब पीछे आपका opponent खड़ा हुआ है, side पे खड़ा हुआ है, तो your brain becomes a little more active. That kicked in when I joined the corporate world. So KPMG से I went to Standard Chartered से I went to, I didn't like banking much, तो मैं 4 महीने के अंदर ही I switched. I went from 45,000 rupees back in 2003 to 15,000 rupees to join IL Saatchi and Saatchi in advertising because I didn't want to be in banking. I didn't want to be in finance. I wanted to do something like creative and stuff. And I got exposed to that. Or I was really fortunate. I got to work on the Commander Safeguard brand. Really? हाँ. So I was part of that team. मतलब उसकी अगर second and third उसकी episode देखो ना, तो उसमें मेरा assistant producer का नाम भी लगा हुआ है. हाँ. So Commander Safeguard के बाद जो है, again I think I was really great at, मतलब I think I was pretty decent at clearing interviews. So I went through about 11 or 12 interviews at total. And फिर मैं I became the person responsible for the entire Sindh and Balochistan region to basically approve and deploy total के petrol pumps. So that was a completely different experience. That was just beautiful. पूरा पाकिस्तान के मतलब 3 हिस्से अगर हो जाएं और आपको सबसे बड़ा हिस्सा मिल जाए और आपको रोड मास्टरी करने को मिल जाए कि आप जाके एक इलाके की एक गली एक कूचा, मतलब हर चीज़, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट पीपल, किस तरह के लोग हैं, क्या है, आपको वो एक्सपीरियंस करने के लिए मिले, डिफरेंट किस्म की हॉस्पिटैलिटी देखो, हर चीज़ करो. तो दिस वाज बिकमिंग वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट जॉब्स एवर. मतलब it was something that I really liked. 26-27 साल उम्र थी और उस वक्त आपको मतलब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई. आई वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लॉयमेंट ऑफ 1/3 of a 1 billion rupee बजट. और मेरा काम था अगले 30 साल प्रेडिक्ट करना कि यार ये जो पंप लगा रहे हो अगले 30 साल परफॉर्म कैसा करेगा. तो हम लोग उस वक्त डीलर्स को ये कहते थे कि यार हमें ना इंसान की पहचान ज़्यादा बेहतर करनी होती है, बिकॉज दिस इज़ मोर वो देना शादी, लाइक मतलब दिस इज़ मोर ऑफ अ कमिटमेंट देना शादी तो फिर भी टूट सकती है लेकिन ये चीज़ नहीं टूटेगी. तो वो बड़ा मज़े का था. इट वाज अ गुड हेडी सॉर्ट ऑफ एन एक्सपीरियंस. एंड उस कंपनी में आप सीखते बहुत हैं. मतलब इट वाज अ वेरी वाइज कंपनी. हाँ, अब मेरे जो डायरेक्ट बॉस थे वो टोटल के CEO हैं पाकिस्तान के, आसिफ इकबाल. हाँ, सो आई गॉट टू वर्क विद रियली ग्रेट पीपल. आई थिंक मेरी जो ज़िंदगी के सबसे अच्छे मेंटोर थे, आई बीन रियली लकी टू हैव सम रियली ग्रेट मेंटोर्स. उसमें से एक फैसल शुजा खान थे जो KPMG के अंदर पार्टनर थे, अफगानिस्तान के भी पार्टनर थे. ही इज़ नाउ द CEO ऑफ OVEX टेक्नोलॉजीज़. दूसरे जाफरी साहब थे, जाफरी साहब मुश्तबा जाफरी. उनका इंतकाल हो गया है. आई प्रे फॉर हिम एवरी सिंगल डे. मतलब एंड आई रियली मिस हिम लाइक एन एल्डर ब्रदर. मतलब आई रियली मिस हिम. जाफरी साहब बहुत खूबसूरत आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे. मतलब ही टॉट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड मुझे मैं तुमसे अभी बात कर रहा था ना पढ़ने वाली, तो ये कहते थे कि सो जाफरी साहब टोटल में आने से पहले वो शेल, and he grew up in Shell, and he was a consumer of really good literature and art and all of that, right?
तो आई थिंक दोज वर ऑल्सो द परसूट्स ऑफ अ सिंपलर टाइम. आपके पास और कुछ नहीं होता था तो आप किताब बड़ी अच्छी पढ़ सकते थे, म्यूज़िक बड़ी अच्छी इन्जॉय कर सकते थे, आर्ट बड़ा अच्छा मतलब सिमुलेट कर सकते थे. उन्होंने सादकियान साहब के साथ बड़ा टाइम गुजारा हुआ था, तो वो ना तरबियत बड़ी अच्छी करते थे, लाइक बड़ी होलिस्टिक किस्म की तरबियत. और देन अगेन मतलब आप ऑयल के अंदर हो एंड देयर इज़ नथिंग मोर रोमांटिक देन एन ऑयल मैन ना. मतलब ऑयल वाला सीन तो बहुत ही बड़ी चीज़ होती थी, राइट. यू हैव सो मच इन्फ्लुएंस एंड पावर, you're dealing with something that can actually stop the economy. ठीक है, तो it's a very beautiful industry. तो उधर जाफरी साहब ना ही यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद मी लाइक ऑन द फोन और उस तरह की, एंड ही यूज्ड टू ग्रूम मी अ लॉट. तो वो कहते थे कि शेल की हायरिंग प्रोसेस के अंदर ना उन्होंने एक दफ़ा ही हैड द अपॉर्चुनिटी टू सिट विद द ग्लोबल हेड ऑफ HR फॉर शेल. उसने बोला कि यार व्हाट डू यू, इन्होंने पूछा कि व्हाट डू यू लुक फॉर व्हेन यू आर हायरिंग समबडी. उसने कहा कि एवरीथिंग असाइड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज विल ही बी गुड डिनर कंपनी. हाँ, नॉलेजेबल होगा या नहीं होगा, किताबें पढ़ने वाला होगा नहीं होगा, ओके, हाउ much of a renaissance man or something would that person be. ठीक है, वो पढ़ता कितना है, लिखता कितना है, सोचता कितना है, उसकी सोशल लाइफ कैसी है. और क्योंकि डिनर कंपनी का फ़ायदा, सो क्या आप देख रहे क्या हो, खाने की तमीज़ है, उसको कटलरी हैंडल करनी आती है, उसको पोलाइट कंपनी में बैठना आता है, उसको कंपनी के लिहाज से स्विच करना आता है, उसको डेप्थ में कॉन्वर्जेशन करनी आती है. वो खाली 160 कैरेक्टर की कॉन्वर्जेशन नहीं करेगा, वो कैरेक्टर वाली कॉन्वर्जेशन करेगा. सही है, वो डेप्थ देखेगा. तो मैंने उनसे एक दफ़ा पूछा था, मैंने कहा यार आपने IBA और मेरे जो कंपेटिटर्स उस वक्त इंटरव्यू में आए थे, द लास्ट पर्सन दैट आई केम हेड टू हेड विद वाज समबडी जो कि IBA का पढ़ा हुआ था, 5 साल उसका PSO का एक्सपीरियंस था. तो मैंने पूछा आपने मुझे क्यों पिक किया. तो कहते हैं बिकॉज यू वांटेड टू लर्न. दूसरा, तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड से मुझे नज़र आया था कि यू वुड नेवर गेट करप्टेड. ठीक है, क्योंकि अगर आप पंप ऑथराइज करो तो बहुत लोग आप लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं, चीज़ें करने की कोशिश करते हैं. ही सेड कि यार आई न्यू कि तुम यू फ्रॉम योर इंटरव्यू इट केम आउट कि यू हैव नॉट बीन रेज्ड दैट वे जो पैसे से मरूब होगा. सही है, अल्लाह का बहुत बहुत करम है, मतलब अल्लाह का लाख लाख करम है कि ऐसे घर में पैदा किया जहाँ पे पैसा सेलिब्रेट नहीं हुआ, अचीवमेंट सेलिब्रेट होती थी, ऑनर सेलिब्रेट होता था, कैरेक्टर, मोरालिटी, ये सब उसके ऊपर ना वो डिस्कशन में आती थी. और अल्लाह करे मतलब हर चीज़ अच्छी रहे और मतलब सब कुछ इसी तरह चले, और ये वाली ब्लेसिंग अल्लाह की रहे हमेशा. दूसरा कहते हैं आई कुड सी यू वांटेड टू लर्न एंड आई वांटेड टू टीच. वाओ, ठीक है. एंड थर्ड ही सेड and you were a reader, so I knew I could discuss things with you. And Muhammad, I swear to God, इससे ज़्यादा wisdomous चीज़ मैंने नहीं देखी है. अगर बच्चे किताबें पढ़ते हैं, personalities को पढ़ते हैं, they're not consumed by these small snippets, and I consume my knowledge through video वाली जो चीज़ है ना, वो नहीं करते, because it's now it's a prevalent trend. हर बंदा ये कहता है कि मैं अपनी नॉलेज जो है वीडियो से, आपको वो डेप्थ ही नहीं मिलती जो आपको एक डीप डाइव के साथ एक मिलती है. आप बेशक एक पर्सनालिटी को पढ़ो, लेकिन जिस तरह पता है इफ़ यू रीड चर्चिल, तो चर्चिल इज़ अ कंप्लीट पर्सनालिटी, राइट. मतलब आज तक उसके फुटप्रिंट्स और मतलब सारी चीज़ें नज़र आती हैं. सही है. नेतन्याहू को पढ़ो, मतलब लोग कहते हैं वो तुम यहूदी को पढ़ रहे हो. बेटा अगर आप दुश्मन को या किसी को भी नहीं पढ़ रहे हो, जो अचीव कर रहा है अपने गोल के साथ, तो वो चीज़ें अचीव कर रहा है ना, आपके लिए बुरा है, अपनी कौम के लिए तो अच्छा है. ठीक है, आप इलॉन मस्क की सारी बातें करते हो, हाँ यार इलॉन मस्क ने इतने ट्रिलियन का हो गया, कैसे हुआ, डेप्थ में तो पढ़ो, वीडियो से क्या समझ आएगी. ठीक है, देन यू कैन एक्चुअली हैव नॉलेजेबल कॉन्वर्जेशंस. वेरी फ्यू पीपल हैव दैट कैपेबिलिटी ऑफ रीडिंग एवरी डे, बट दे आर द वंस हु आर एक्चुअली गोइंग टू क्रिएट अ लॉन्ग टर्म डिफरेंस. यू लुक एट एनी वन ऑफ द पीपल दैट वी रीड अबाउट, इलॉन मस्क हो गया, कोई भी हो गया, सिंपल चीज़ ये रीडिंग. मैं तुम्हें एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. मुझे ना माजू के अंदर, इस्लामाबाद माजू के अंदर हमारी क्लास में एक IBA के टीचर आए फॉर 2 weeks. ठीक है, और उनका ना बहुत मेजर एक चैलेंज ये चल रहा था कि 2 हफ्ते के अंदर उन्होंने हमें एक किताब दी, इन सर्च ऑफ एक्सीलेंस, ये सब पढ़ के आना. ठीक है, इन सर्च ऑफ एक्सीलेंस, इन सर्च ऑफ एक्सीलेंस. ठीक है, तो मैं पढ़ने का तो शौक था, किताब भी अच्छी लगी.
हाँ और बिजनेस केस स्टडीज़ और ये सब तो वैसे ही वो चीज़ एक मतलब वो होती थी। तो अब मैं बता तो दिया आपको कि कितनी माशाल्लाह पढ़ाई के अंदर होनहार थे। तो अपनी आला तालीम के अंदर हम अच्छे खासे पीछे बैठते थे, सबसे पीछे। तो जीपे भी मेरा 2.6 2.8 के करीब चल रहा था कुछ। तो जब वो जाने लगे ना, अपना सेशन कंप्लीट करके 2 हफ्ते का हमारे साथ अटैचमेंट कंप्लीट करके जाने लगे, तो किसी क्लास के ना फ्रंट बेंचर ने पूछा कि हमारी क्लास में सबसे आगे कौन जाएगा, हु डू यू थिंक इज गोइंग टू बी द मोस्ट सक्सेसफुल। एंड ही टर्न्स अराउंड, दिस वाज लाइक 2 सेक्शंस मर्ज किए हुए थे, अबाउट 74 73 पीपल। तो ही सेज आई थिंक फाद's गोइंग टू बी रियली सक्सेसफुल। और मेरी लिटरली शक्ल यूँ उठी, क्या किस बात पे ना। तो उनकी भी ऑब्वियसली फ्रंट बेंचर्स की भी यही हुई कि यार इसका जीपीए देख, इसकी शक्ल देख, 2.8 मतलब ये कहाँ से पहुँचेगा। तो उन्होंने कहते हैं कि यार इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके एंड हम honestly speaking, you could have the best ideas in the world. If you don't know how to explain them, you're not going to achieve much. ट्रू And communication is a lot of things. It's a lot of empathy. It's a lot of feeling. It's a lot of understanding and being there for the other person that you're communicating with. So वो हमेशा कहते हैं rule of communication is one-sided communication is not communication. Communication में जब तक feedback complete नहीं होता तो communication नहीं होती. listening is very important. So But you were communication. able to communicate well because you Reading. were reading. हाँ, you were reading a lot. Reading. तो आपके अल्फाज vocabulary वहाँ से बेहतर हो जाती है. रीडिंग, प्योर रीडिंग, देयर इज नो अदर। वो मतलब तुम जिंदगी में कुछ ना करो, यूनिवर्सिटी ना जाओ, कॉलेज ना जाओ, कुछ ना करो, बट इफ यू आर रीडिंग यू आर गेटिंग इन्फ्यूज्ड विद पावरफुल आइडियाज ऑफ सक्सेसफुल पीपल। देखो मैंने जो बचपन में पढ़ा ना, मैंने सारी पढ़ी टेक्नो थ्रिलर्स। तो मैंने पढ़ी हर किस्म की, पहले तो वो जो सिडनी शेल्डन ये वो सारी बकवास होती है वो मैंने पूरी पढ़ी। लेकिन मेरी जो सबसे ज़्यादा जो मुझे डिफ़ाइन किया वो टॉम क्लैंसी ने किया। उसके अंदर एक कैरेक्टर था जो कि एक CIA एनालिस्ट से स्टार्ट होता है एंड अल्टीमेटली बिकम्स प्रेसिडेंट, एंड ही इज़ अ हार्ड कोर ब्लू ब्लडेड अमेरिकन, वेरी वेरी patriotic and doing the right thing, moral high grounds and everything. So that shapes you, right? You read those books and that's what you want to be like, right? Very upright, and you know you're going to fix the nation or work for the nation, and you're going to build an identity for the country and all of that, right? So आप वो करते हो। तो उन्होंने मुझे शेप किया। फिर उसके बाद मेरी आई स्टार्टेड ग्रेविटेटिंग टुवर्ड्स पर्सनालिटीज। Okay. तो अभी भी मेरी महीने की एक ज़माना था कि जब मैं KPMG ज्वाइन किया था तो आई स्टॉप रीडिंग क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था। एंड वहाँ मुझे एक दिन इतनी गंदी क्रेविंग हुई है कि कोई लॉन्ग वीकेंड आया है, सही है, मैंने सबसे बोला मैं बात नहीं करूँगा। आई वॉज लिविंग अलोन इन अ हॉस्टल टाइप, तो मैंने कहा किसी से बात नहीं करूँगा 3 दिन के लिए। मैंने जाके 14 किताबें ख़रीदी एंड आई थिंक आई रेड 3 or 4 बुक्स इन दोज 3 days। मेरी कमर में बल, गर्दन में बल, ये वो, मतलब मैं मिस कर रहा था रीडिंग को ना। और अब आई सी दैट माई सन कि ही रीड्स अ लॉट एंड ही रीड्स वेल। What are the personalities? आपने कहा मैंने बहुत सारी personalities को फिर पढ़ा, तो what are the personalities that you read? every that shaped you? military history, every military general, मुझे लगता है स्ट्रैटेजी का जो एप्लीकेशन बिजनेस के अंदर है वो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। मैंने वो बहुत पढ़े। मैंने एवरी बिजनेस लीडर, मतलब लिया कोगा की मैंने एक किताब पढ़ी थी, वो जो क्राइसलर वाली जो किताब है कि क्राइसलर की उसने टर्न अराउंड कैसे कराई थी और कैसे किया था, एंड फोर्ड में वो कैसा था और इस तरह की चीज़ें। सो इमेजिन अ किड 90s में पाकिस्तान में बैठा हुआ एक लाइब्रेरी के अंदर, उसको पुरानी वाली किताब मिल जाती है और वो निकाल के वो पढ़ता है, एंड ही गेट्स टू रीड अबाउट अ कल्चर विच इज़ कम्प्लीटली फ्रॉम यू नो द फर्स्ट वर्ल्ड। एंड those are the things that infuse like passion and clarity and hope in your mind कि यार अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, right? So I started reading about all of them. I read like Kiyo Morita's वो Made in Japan. I read अभी मैंने recently मंगवाई है इसकी जो जिस बंदे ने Hyundai स्टार्ट की थी, right? I've still not gotten around to reading it, but now, so by now I've read most biographies on most world leaders like Lee Kuan Yew, and उसका फ़ायदा क्या होता है? You will never, कभी भी ज़िंदगी में तुम सब कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर सकोगे, बट अगर आप किसी और पर्सनालिटी को पढ़ लेते हो, ठीक Learn है, from others' experiences. हाँ, Yeah.
your wisdom starts increasing in exponential ways. सही है. तो मतलब अब मेरे से नेतन्याहू हो गया, जो भी वर्ल्ड लीडर्स हैं उनके बारे में मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ. मैं अमेरिकन फाउंडिंग फादर्स में बहुत पढ़ता हूँ, बिकॉज उन्होंने उस सोसाइटी की वो ब्रिक्स रखी थी जिसके ऊपर, या वो फाउंडेशंस बनाई थी जिसके ऊपर आज अमेरिका खड़ा हुआ है. हम लोग पाकिस्तान को कंपेयर करते हैं, पाकिस्तान में बहुत चीज़ें हम सीख सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन वन ऑफ द मेजर थिंग्स इज़ कि पाकिस्तान के अंदर योर बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ वी डोंट रियलाइज कि अमेरिकन जब सिविल वो हुई थी, रेवोल्यूशन हुई थी, रेवोल्यूशन के 100 साल के अंदर अंदर उधर सिविल वॉर आ गई थी. सो अमेरिका 1776 में आज़ाद हुआ था गोरों से. ठीक है. उसके बाद उनकी रूट्स को भी सेपरेट करने में टाइम लगा, उन इंस्टीट्यूशंस को भी डाई डाउन होने में टाइम लगा. जब वो इंस्टीट्यूशंस डाई डाउन हो गए तो फिर नेक्स्ट क्या हुआ? फिर सिविल वॉर आई कि यार कुछ के राइट्स गारंटीड नहीं है, स्लेव्स को फ्री करो, ये करो, वो करो, तो सिविल वॉर आई. सही है. दिस हैपेंड इन 1860 समवेयर, 63 या कुछ इस तरह करके. सो लेस देन 100 years they went to civil war, like Americans were killing each other. And then fast forward like 50 years and you have America become the global dominant world power after World War II. So I read up a lot of World War I, World War II, causality of events, the nature of fascism, the dialogue of leaders. अगर आप ये पढ़ते हो तो मज़ा आता है. अब मेरी वो एक बन गई है तो मुझे मज़ा आता है उस चीज़ का. And it's just interesting. Also, it is more about curiosity. You have always been very curious about, knowing. मुझे ना मज़ा आता है लोगों को देख के कि how do they tick. So मुझे चिढ़ाने में भी मज़ा आता है, खेलने में भी मज़ा आता है, मजाक में भी मज़ा आता है. I just want to know how people respond to different things, right? It's just interesting. I think it's my character as a Gemini probably that does it, You're a right? Gemini? हाँ, so मेरा वो वाला चीज़ होता है शायद कि लोगों को ना मतलब उस जगह तक वो करो, कभी चिढ़ाओ, कभी हंसाओ, कभी मजाक करो, कभी गम, कभी खुशी वाला सीन, ताकि देखो तो सही हर सिचुएशन में रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं. सही है. हाँ, and I enjoy it, right? दूसरा ये है, so Total was something that I really enjoyed, and in large part because of Jaffrey साहब. ठीक है. फिर my Thai developed cancer and my father was retiring. I just wanted to be close to my family at that time. So मतलब मैं उधर आ गया. So I taught at a university ठीक है. for about a couple of months, but that was too boring for me. मतलब आपको कॉर्पोरेट की आदत हो जाए तो फिर आपको वो नहीं होती. हाँ, टीचिंग बोरिंग लगने लगती है. बहुत सारे लोग जो कॉर्पोरेट में रह चुके हैं वो कहते हैं कि टीचिंग बोरिंग है. हाँ, टीचिंग बोरिंग बहुत ज़्यादा. इट्स लाइक वॉचिंग पेंट ड्राई. एंड दूसरा ये होता है कि यार इफ़ यू आर डूइंग दैट तो देन बट आई थिंक इंडस्ट्री के लोगों को जाके पढ़ाना ज़रूर चाहिए, बिकॉज दे कीप इट फ्रेश. बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में होता है कि टीचर्स जो हैं बस ग्रेजुएट है उधर ही पढ़ाने के लिए लगे. दैट्स स्टूपिड. मतलब आपको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस ही नहीं है. आप बात क्या कर रहे हो? मतलब यू ट्राइंग टू प्रिपेयर किड्स फॉर अ लाइफ दैट यू इवन डोंट नो कि कैसी होती है, रिगर्स क्या है उसकी, कितनी मुश्किल होगी, कितना मुश्किल से लोग आपको ग्रूम करेंगे. तो वो किया. देन आई स्टार्टेड सेलिंग वेपन्स टू द आर्म्ड फोर्सेस बिकॉज दैट्स समथिंग व्हिच इज लाइक रियली इंटरेस्टिंग एंड आई लव्ड इट. I'll be very honest with you. It's something that I really enjoy. about it. Yeah, matlab, so I always had a flair for like growing up in a military family. That's something that comes naturally to you, and I was pretty good at recognizing military equipment. I used to go to. So when you go to a library ना, तो फौजी एरियाज में जो लाइब्रेरी होती थी ना, उसके अंदर अमूमन आपको जेन्स डिफेंस वीकली और जेन्स नेवी एंड जेन्स आर्मी एंड जेन्स, ये एक बड़ी एक स्पेसिफिक वो थी, एक सीरीज़ ऑफ मैगजीन्स थी जो बताती थी कि दुनिया में मिलिट्री हार्डवेयर में क्या क्या हो रहा है. तो मैं बचपन से ये कंज्यूम कर रहा होता था और मैं मिलिट्री बायोग्राफीज़ भी कंज्यूम करता था. तो जब मैं इस्लामाबाद पहुंचा तो इस्लामाबाद में दिस इज़ अ वाइब्रेंट इंडस्ट्री. सो आई गॉट टू वर्क विद अनदर सुपर पावर हाउस, लियाकत अली बेग साहब, for 2 years, and then I transitioned from that into my own business in military renting. So I started doing really well. ठीक है. Wow. And I would be going to Paris Air Show and Dubai Air Show and all of those, and seeing all of these like F-22 Raptor गुजर रहा है और मतलब and मैं हूँ भी थोड़ा सा ना मतलब वो धत्ती टाइप के यार. वो सुबह जब वो आपके सामने आके परफॉर्मेंस में जब वो अपनी जेट वॉश मारता है तो जेट वॉश की जो खुशबू आती है ना, जो बर्न फ्यूल की आती है, that was all just music to my ears. Like still right now, I spend a lot of time with the Air Force. दोस्त हैं ज़्यादातर, भाई हैं, and बहुत सारे दोस्त हैं उसके अंदर. तो मुझे अभी भी जहाज़ का जब इंजन रोर करता है, it's still something that gets me.
आई डिड दैट फॉर 4 years, 4-5 years, डूइंग रियली वेल. बट उस वक्त तक एक दिमाग में ये शुरू हो गया था कि यार कुछ ना, मतलब अल्लाह ताला कोई ऐसी चीज़ करवा दे. वो आई थिंक ताया की डेथ से ये होना शुरू हो गया था कि यार देखो मौत तो सबको आनी है, तो फिर ज़िंदगी का मकसद क्या है. तो फिर मुझे ये समझ आया कि ज़िंदगी का मकसद खूबसूरत मौत है. और खूबसूरत मौत क्या है कि खूबसूरत ज़िंदगी हो. खूबसूरत ज़िंदगी क्या है, जो उसमें आप खुदा की खिदमत कर रहे हो. तो मैं अल्लाह ताला से वो दुआ नहीं है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, वो जो आई जस्ट स्टार्टेड रिपीटिंग दैट ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन, राइट. दूसरा, आई स्टार्टेड, मेरा ऑफिस वाज अ लिटिल फार अवे, सो आई स्टार्टेड going towards so it was about a 40-minute drive. I would read I would listen to इकबाल के वो जो साबरी ब्रदर्स का शिकवा जवाब शिकवा है ना, वो मैं बहुत सुनना शुरू हो गया, जिसमें वो जलवाए तूर तो मौजूद है, मूसा ही नहीं, ठीक है, तुम में से हूरों का चाहने वाला ही नहीं, मतलब तुम यू नो वो मतलब सो मच, राइट. Wow. तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करना शुरू हुआ. तो दुआ में इंटेंसिटी भी आना शुरू हो गई, रब्बना आतिना फिद. अब पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद APS का वाक़या हुआ एंड समथिंग इनसाइड मी जस्ट फ्लिप्ड. इट वाज लाइक मैंने अपने बच्चे को, बिकॉज आई वाज डूइंग वेल, तो मैंने उसको निकाला स्कूल से और एक ऐसे स्कूल में डाल दिया जहाँ पे पढ़ाई जैसी भी हो, मतलब सिक्योरिटी कमांडोज थे, अच्छी M4 राइफलें थी, ये थी वो थी, सब कुछ था. बट रोज़ उसके पिछले स्कूल के सामने से गुजरता था, उसके पिछले क्लास वाले उसको देखता था और दिमाग में होता था कि अपने बच्चे को निकालिए तो बच्चा बच जाएगा, मतलब पूरी सोसाइटी को नहीं सही करोगे तो कैसे सही होगा. एंड फिर मतलब ये सारे हमारी बच्चे हैं ना, मतलब दे आर ऑल आर्ट्स. तो दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन मुहाफिज एंड बिल्डिंग द सिस्टम. तो ये है लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड. Beautiful, यार. नहीं बहुत ही ज़्यादा लंबा भी हो जाता है ना. So I enjoyed it. Once you don't get bored, that means audience will not get bored. But मोहसिन पे हम और बात करेंगे, बिकॉज आप ऑफ कैमरा भी जिस तरह से आपकी बातों में डेप्थ मुझे नज़र आई थी, एंड यू सेड कि आई नीड टू लर्न मोर. आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि आपने ऑपरेशंस किस तरह से, बिकॉज आपने ठीक है आपने बताया कि दिस वाज द ओरिजिन ऑफ मोहसिन. टुडे मोहसिन इज़ यू नो एंड मुहाफिज ऑल्सो इज सर्विंग so many people. When it comes to operational excellence, मैं दोनों के लिए बात करूँगी, मोहसिन के लिए भी और मुहाफिज के लिए भी, वो कैसे आती है? बिकॉज आप माइक्रो मैनेज नहीं कर सकते, आप हर वक्त नहीं देख सकते. आई अंडरस्टैंड एक अच्छी टीम बनाना बहुत ज़रूरी है, बट वो अच्छी टीम भी कैसे, बिकॉज आपको आपके जितने पैशनेट लोग हमेशा मिलना बहुत मुश्किल है, राइट. तो आई एम श्योर यू स्टार्टेड एज वन पर्सन एंड टुडे यू हैव 80 to 100 पीपल इन योर टीम. वो ऑपरेशनल एक्सेलेंस की मुझे डेप्थ जाननी है. So देखो, one has to be very comfortable with attrition. Not everybody is going to feel it the way you feel it. So they can leave. Okay. It's all right. If your culture is not a culture that they can be a part of, देखो मैं ना अपनी टीम में हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि हमारी दोनों कंपनियों का पर्पस क्या है. We want to insulate people from the harsh realities of the world that surrounds them. ठीक है, मतलब हम अपने आप को प्लेस करेंगे उस जगह पे जहाँ पे दूसरे को हम शेल्टर कर सकें, ताकि वो अपनी ज़िंदगी अचीव कर सके. दैट मीन्स वी विल बी फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स टू अ लॉट ऑफ थिंग्स. जब भी फटा होगा हम जाएंगे, सही है. इसमें इट टेक्स अ सर्टेन टाइप. हो सकता है ह्यूमर भी इनका मॉर्बिड हो सकता है इनकी चीज़ें भी डिफरेंट हो सकता है तुम इन लोगों से कभी शाम में ना मिलना चाहो, हो सकता है रोज़ मिलना चाहो, बिकॉज इनके पास वाक़ई इतने मज़े के हैं, ठीक है. लेकिन इट टेक्स अ माइंड सेट दैट डज नॉट वर्क 9 to 5. Oh yes. It takes a mindset that is willing to go fully charged at 3 and say, bro, not on my watch. सही है. इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, जिनको मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखो नौकरियाँ बहुत अच्छी नौकरी हैं, ये नौकरी नहीं है, ये कॉलिंग है. एंड इट इज़ ऑल राइट इफ़ यू डोंट वांट टू स्टे, इट इज़ परफेक्टली फाइन. एंड द सूनर यू टेल अस इट इज़ बेटर, बिकॉज वी विल फाइंड यू. हमें समझ आ जाएगी कि तुम कितनी काम में डी वॉलंटियर करते हो, कितनी चीज़ से पीछे निकलते हो, वो करते हो, हमें नज़र आ जाएगा. तो टाइम ना वेस्ट करो, क्योंकि So do you like fire people also? हाँ वी आस्क पीपल टू लीव, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. Okay. हाँ देखो कल्चर वाइज ना, अगर वहाँ इफ़ यू आर नॉट अ फिट फॉर ईच अदर, एंड इट्स अ 2-way स्ट्रीट ना. मतलब आप अगर पैदा अच्छे हुए हो और मैं अगर अच्छा पैदा हुआ हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि हम दोनों ज़िंदगी भर एक दूसरे से बात करें.
हम शाम की चाय पे भी मिल सकते हैं, क्योंकि हमें हो सकता है थोड़ी देर के लिए की कंपनी अच्छी लग रही हो. मैं जितना भी अच्छा लग रहा हूँ बात करने के लिए, आई थिंक आई एम अ पेन टू वर्क विद, बिकॉज आई एम दैट डिमांडिंग इन टर्म्स ऑफ थिंग्स. Okay. ठीक है. एंड यूल मीट अ लॉट ऑफ माई कॉलीग्स, दे आर जस्ट इज कमिटेड, दे आर जस्ट एज वो के नहीं ब्रो, मतलब हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ये वाली माइंड सेट है. Oh. हाँ. Okay. सो इस माइंडसेट के ऊपर एक्सक्यूजेस खत्म हो जाती है ना. मतलब अब अगर आपकी टीम में ऐसे लड़के लड़कियां काम कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो अपने आप को डिस्कवर करना चाहते हैं अंडर द मोस्ट ट्राइंग सिचुएशंस. ये वो नहीं है जो आके बोलेंगे कि यार मैं ज़रा थोड़ा सा मतलब ज़रा बर्न आउट फील कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ. ये वो नहीं है. ये बोलेंगे आई वांट टू गो टू टिल दैट एज एंड कम बैक. सो दिस मीन्स यू आर ओनली रिक्रूटिंग फ्रॉम से 250 मिलियन पाकिस्तानी हैं, एन एलिजिबल वर्क फोर्स इस वक्त आपके पास 20-30 मिलियन 40 मिलियन की वो है. आई एम जस्ट लुकिंग फॉर 1,000 पीपल हु बिहेव दिस वे. यू डोंट हैव टू लाइक दम, बट दे विल बी देयर फॉर यू इन एन इमरजेंसी, फॉर एनी सिचुएशन. चाहे मुहाफिज हो चाहे मोहसिन हो, दे आर द पीपल यू वॉन्ट, दे आर द फ्रेंड्स इन नीड. सो अ फ्रेंड इन नीड, It's a friend indeed. सही है. Of course. हम लोग दिखावे में नहीं होंगे, हम आपकी हंसी खुशी में हो या ना हो, गम में साथ ज़रूर खड़े होंगे. होंगे, हम खड़े हुए होंगे. एंड गम ना आए हम पहले खड़े होंगे. हाँ, of course. ये भी हम बात कर रहे थे, reactive security and proactive security. सो द एंटायर नेचर ऑफ सिक्योरिटी इज चेंजिंग इन द वर्ल्ड. सही है. पाकिस्तान इज़ अ यूनिक मार्केट, राइट. पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ है. वीक गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स हैं, चीज़ें नहीं होती हैं. लोग एकदम से बिकॉज एक चीज़ वीक है तो वो बैठे बैठे जज जूरी एग्जीक्यूशनर दोनों साइड कर देती है. जो पावरफुल है और जो वीक है, वीक भी उतना ही कर जाता है. सही है. सो आपने अगर इस चीज़ को डील करना है, यू नीड समबडी टू स्टेप अप एंड से भाई मैं बैठ के मीडिएट करा देता हूँ, रुक जाओ, रिलैक्स करो, दोनों की तरफ से हम सॉल्व कर देंगे. यू ऑल्सो नीड अ टीम दैट इज़ वेरी एम्पैथेटिक, दैट एक्चुअली स्टडीज कि इनके लिए क्या क्या रिस्क हो सकती. So a lot of people have their own admin teams and as you said right कि वो बहुत ही reactive security पे believe करते हैं rather than proactive. Are there corporates who are still believing in proactive security? Tell us something about your clients. Yeah, our clients are very visionary in this way. Like मतलब our clients are Daraz, Postex, Bazaar, Retailo, मतलब so many of these, Baskaro. I don't know if you've ever interviewed Maha or not, but Baskaro का वाली, भी मैंने नहीं हाँ, किया, but उससे भी मिल के देखना. She's also like a ball of energy and a force of nature. ठीक है, उससे भी वो करो. ये लोग वो हैं who've understood कि they want to focus on the core of their business. And they don't want a security vendor. They want a security partner who will have their back through thick and thin. टिपिकली कंपनीज में क्या होता है, वही वाली बात, हर एक ने अपनी सिक्योरिटी टीम बनाई हुई है. कोई कर्नल साहब, मेजर साहब, लेफ्टिनेंट कर्नल साहब, मतलब कोई रखे हुए हैं, कोई ब्रिगेडियर साहब रखे हुए हैं. वो आते हैं पूरे महीने में, उनका कोई और काम नहीं है, लेकिन वो मतलब चीज़ें करेंगे और फिर वो आपको जो है एक आध महीने में कोई 2 या 3 केसेस हैंडल करके देंगे और उसके ऊपर आपको लगता है कि उनकी यूटिलाइजेशन है. हमने ये किया कि हमने ये सारी टीम इंटरनल बनाई. पाकिस्तान के अंदर हमारे पास 80 से ज़्यादा लोग हैं जो बैठे हुए हैं ऑल अक्रॉस पाकिस्तान. एंड दे बिकॉज दे आर सर्विंग मल्टीपल क्लाइंट्स, they are getting exposed to so many types of problems that they are able to help all of these clients across industries. सही है. एक नॉलेज बेस वाइज हमारी टीम के करीब कोई भी नहीं आता. ठीक है. इंटरनल टीम आ ही नहीं सकती इनका रोज का काम है ना. इनका रोज का 55 से 60 FIR कटवा रहे हैं, वो शायद महीने में 2 या 3 कटवाएंगे. ठीक है. एक चीज. 2 दूसरा, हमारा जो सबसे बड़ा जो उसके अंदर जो वो है वो ये है कि तुमने जो 30, 40, 20, 25 लाख रुपए का खर्चा किया हुआ है, जिसके अंदर तुम्हें एक टीम मिल रही है जो शायद साल में 365 में से 335 दिन तुम ना इस्तेमाल करो, उसके बजाय अगर तुम मुझे उसका हाफ बजट दे दो, मैं तुम्हें उससे बेहतर रिस्पॉन्स रेट दे दूंगा. 24 घंटे टीम एक्टिव है, फील्ड में डिप्लॉयड है, जहां मसला होगा 20 मिनट में पहुंच जाएंगे. ठीक है. ये नई कंपनियों को समझ आता है. अच्छा, दूसरा, अब तुमने बड़ी अच्छी बात की कि ये एडमिन की अपनी टीम होती थी. सिक्योरिटी इज नॉट एन एडमिन फंक्शन, इट्स नॉट अ साइड फंक्शन. In a country like Pakistan, if your operations, your facilities, your people, your assets on the ground, assets fixed, assets mobile, they are not protected with a proper security which is designed
with a response plan that is designed, which is bespoke in nature, ठीक है, which is highly nuanced, and then has the benefit of all industries coming in together to see कि यार crime का trend इधर जा रहा है, ये उधर हो रहा है, इस जगह पे movement नहीं करना, इस वक्त करोगे, इसको ऐसे करना है, ये normal security teams कर ही नहीं सकती हैं. तुम सोचो हमारी टीम में लोग हैं जो IBA लम्स के हैं, और फौजी भी हैं रिटायर्ड, और पुलिस वाले भी हैं. आई हैव मेड दिस हॉटबेड ऑफ रियली नाइस टैलेंट that wants to go and make sure that no business is bullied by the environment it's operating in. Wow. We specialize in this. We live it and breathe it. Wow. ठीक है? If I have your back, nobody can mess with you. They will have to go through us. एंड इवन अगर कॉर्पोरेट्स की बात करें, उनकी एडमिन टीम की भी पेरोल्स आर क्वाइट ग्रैंड, यू नो. इवेंचुअली पैसा तो उतना लगा रहे हैं. Admin itself is a specialist function, but security is not a part of it. ये this is what CEOs and major stakeholders have to realize. If you want your operations to be safe, hire Muhafiz, because that's what will work. उसके अलावा नहीं चलता. उसके अलावा यही है कि you'll have a lot of people जो पूरा दिन बैठ के आपको emails भेज रहे होंगे, jokes भेज रहे होंगे, चीज़ें कर रहे होंगे. We've actually got a business intelligence cell that collates and corroborates information to actually tell our clients कि आज सड़क पे ये होने वाला है, इस जगह पे तेरे डिलीवरी को अवॉइड कर लेना, आज सड़क पे ये होगा, आज ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं. हम लोग प्रिडिक्टिव सिक्योरिटी अलर्ट्स भेजते हैं थ्रू मुहाफिज पल्स. ठीक है. सो मुझे ये था, जब मैं टोटल में था तो मैं कहीं ट्रैवल कर रहा होता था, मुझे कॉन्स्टेंटली ये बोला जाता था कि यार देखो सिंध में ट्रैवल कर रहे हो तो डाकू होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, तो तुम्हें पता होना चाहिए क्या करना है. सो आई नो द कॉर्पोरेट साइड ऑफ दिस प्रॉब्लम, द सिक्योरिटी साइड, कि अगर अगवा हो गया तो क्या करोगे. एम्प्लॉई अगर किसी ने कोई कुछ हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई तो क्या करोगे. दिस इज व्हाई आई डिजाइन्ड मुहाफिज इन अ वे वेयर एनीबडी who's got security challenges on a routine basis, you don't want to have. अच्छा, बहुत कंपनियां तो ये भी रियलाइज करती हैं बस सिक्योरिटी ऑफिसर टोकन है तो उस टोकन को रखने के बजाय हमारी टीम को रखो. जब टीम को रखोगे यू विल हैव अ सुपर चार्ज टीम दैट्स अवेलेबल ऑन डिमांड. देखो अब कोवर्किंग स्पेसेस भी होती है ना. आप जाते हो उधर, आप जाके कहते हो यार मैं आऊंगा, मुझे सारी की सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी, प्रिंटर भी चल रहा होगा, ये भी चल रहा होगा, वो चल रहा. मुहाफिज इज दैट फिक्स. ओके. एंड व्हाट अबाउट B2C? सो देखो B2C के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट किया था मुहाफिज की ऐप से ओरिजिनली एज अ प्राइवेट 911 सर्विस. उस ज़माने में हमने जब ऐप लॉन्च की थी, वी वेंट फ्रॉम 11,000 डाउनलोड्स टू 43,000 डाउनलोड्स simply based on one interview that we did, and it went to eventually about 100,000 downloads. ठीक है. फ़ायदा नुकसान उसमें ये हो रहा था कि उसके ऑपरेशन की कॉस्ट है. सही है. उस वक्त ना इन्वेस्टर अवेलेबल थे, ना पेमेंट गेटवेज अवेलेबल थे. फिर इन्वेस्टर्स अवेलेबल हुए, लेकिन उनकी इन्वेस्टमेंट एपेटाइट इस तरफ की नहीं थी. ओके. दे वांटेड टू वर्क ऑन अदर बिजनेस मॉडल्स जो कि वेस्ट में सक्सेसफुल हो चुके थे. सही है. मेरे लिहाज से अगर इसके ऊपर इन्वेस्ट करते, ये वो वाला मॉडल होता है जो फिर पाकिस्तान से बाहर भी निकलता और बाकी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर लोग प्राइवेट 911 के कॉन्सेप्ट्स दे सकते थे. एंड वी कुड हैव बीन द उबर वेयर वी वर ऑलवेज द सेकंड एंट्रेंट और अ कॉपी कैट इन दिस मार्केट, राइट. तो मैंने वो करना शुरू किया, बट देन वी हैड टू रोल इट बैक. सो अब हमारी कभी भी कोई इमरजेंसी वगैरह कोई अगर किसी पुराने वाले को पता होता है, वो हमें बताते हैं खून चाहिए, ये चाहिए. वी गॉट द लार्जेस्ट ऑनलाइन डेटाबेस ऑफ ब्लड डोनर्स इन पाकिस्तान. तो हम लोग रूटीनली लोगों के लिए ब्लड अरेंज करके दे रहे होते हैं किसी भी चीज़ के लिए, वो B2C में हो रहा होता है. जब हम लोग सो अब लेकिन प्लान ये है कि दिस ईयर इन December वी विल लॉन्च मुहाफिज B2C अगैन. Okay. And we're going to launch it at ₹1 or ₹2 a day. So there were no funds raised throughout this process, not even from Mohsin? नहीं. Later on you raised funds? बीच में एंजल्स आते रहे. Okay. और वहाँ वो वाकई में मतलब मेरी केस में तो एक्चुअल एंजल्स थे. एक एंजल है फराज खान. मैं कराची आया था इस्लामाबाद से और मेरे पास वापस जाने के पैसे नहीं थे. एंड उस वक्त उन्होंने 20 लाख रुपए का चेक कट किया था और पता है क्या किया था? कोई टर्म्स नहीं है, कुछ नहीं है, तुम रख लो, तुम जो काम कर रहे हो ये बहुत अच्छा काम है, तुम रख लो. Wow.
ठीक है. फराज भाई वाज द CEO ऑफ सीड वेंचर्स. नाउ ही इज स्पेक्टर इको, मतलब उसके अंदर है, एंड ही इज डूइंग रियली वेल माशाल्लाह. मतलब ही इज ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. बट फराज भाई ने उस वक्त बड़ा सपोर्ट किया. फिर एक गोरा था, एक शूट पे आया, मेरे भाई की प्रोडक्शन कंपनी थी, और उसकी हम लोग सिक्योरिटी और रिस्क मिटिगेशन कर रहे थे. और मैंने उसने मुझसे पूछा था तुम क्या क्या करते हो, तो मैंने बोला यार मैं ये सब कुछ करता हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू वर्क टुवर्ड्स बिल्डिंग दिस सिस्टम. ही इन्वेस्टेड $45,000 आफ्टर नोइंग अस फॉर ओनली 2 days. एक गोरा अल्लाह ताला ने इंग्लैंड से भेजा, इधर आया, met us for a couple of days, and in those couple of days decided कि I want to be a part of this, and now is like an elder brother to me. Wow. His name's Gary Mark Kempton. He's a producer. He was the executive producer for Ridley Scott Associates. जिसने ये वो नहीं है ग्लैडिएटर और ये सारी जो मूवियाँ बनाई हैं, सही है, उनका वो फिल्म एडवर्टाइजमेंट उसका जो है वो प्रोड्यूसर था. एंड ही इज़ नाउ लाइक एन एल्डर ब्रदर. सो बहुत जगहों पे जब लगता था कि हिम्मत टूट जाएगी, वी वेंट थ्रू 6 years of bankruptcy every single year, to the point where मतलब the only reason we didn't file for bankruptcy was कि एक तो अल्लाह ताला ने मतलब हिम्मत नहीं टूटने दी, एंड मुस्तकिल लगता था कोई चीज़ चेंज हो जाएगी. और 7वें साल जाके वहाँ वी गॉट आवर फर्स्ट कॉर्पोरेट क्लाइंट, स्विवल आया. एंड देन स्विवल के साथ अल्लाह ताला ने वो किस्मत बदली कि बिकेम $1 million बिजनेस. Wow. तो उसके बाद से मतलब अल्लाह का लाख लाख करम है, वी बीन डूइंग रियली वेल. लेकिन मैं वो पहले 6 साल नहीं और लगा था आपने ना. हार भी नहीं मानी, और आपने गिव अप भी नहीं किया, और आपने बंद भी नहीं तो किया. देखो मैं ना तीसरे कलमे में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ. सो सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम. ये जो आखिरी वाली लाइन है ना, ये पोएटिक है. ना कुछ अच्छा करने की ना बुरा करने की ताकत है सिवाय वो जो अल्लाह दे दे. ठीक है. और मुझे ना इस पे यकीन है, मतलब तवक्कल है कि सो मेरा ना रोज़ अल्लाह ताला से सुबह उठ के होता है, आप जानते हैं कुछ नहीं आता और आप जानते हैं कुछ कर नहीं सकता. इज्जत रख लीजिएगा, करवा दीजिएगा, बस अपने काम लगवा दीजिएगा. सो एवरी सिंगल डे आई स्टार्ट माई डे लाइक दिस, एंड एवरी सिंगल नाइट आई एंड माई डे लाइक दिस कि आज दिन बहुत बुरा हो सकता था, आपने बचत कर ली, वरना मतलब आप जानते हैं कि भाई को कुछ नहीं आता. सो आई हैव दीज कॉन्वर्जेशंस. दूसरा, मुझे ये लगता है कि मैं ये कर ही नहीं सकता था अगर अल्लाह ताला मुझे इनेबल ही नहीं करता इस चीज़ में करने की. दूसरा, वहाँ आई कम फ्रॉम अ प्रिविलेज बैकग्राउंड. पाकिस्तान में आई हैव हैड अ लाइफ विच हैज़ बीन better than 99% of Pakistanis. देखो whether I like it or not, मैं फौजी का बेटा हूँ. I've learned inside cantonment areas. I had access to swimming pools and squash courts and everything when nobody else had access to water. Like very few people had access to those things, right? मुझे ये चीज़ हॉन्ट करती थी. मुझे जब ये वाली चीज़ आना शुरू हुई थी ना, तो मुझे ये होना शुरू हो गया था कि तुम्हारी दुनिया बड़ी अच्छी है, तेरी आखिरत क्या होगी. मतलब लाइक तुम क्या जवाब दोगे कि तुम how did you back away? I put you in a family where you knew people. पाकिस्तान में you know people because of these things. ठीक है. तुम्हें अल्लाह ताला ने एक ऐसे घर में पैदा किया जहाँ पे तुम्हें 3 वक्त के खाने का मसला नहीं है. ठीक है. तुम्हें ऐसे घर में पैदा किया है कि तनख्वाह आ रही है, नहीं आ रही है, लेकिन और तुम्हारे खर्चे ना मीट हो रहे हो, लेकिन एक पर्दा डाला हुआ है. I couldn't afford my daughter's 5th year vaccination. ठीक है. बट बाय वर्च्यू ऑफ लिविंग इन दैट हाउस होल्ड पर्दे थे. ठीक है. मैं कैसे हार मान जाता. लेकिन मजे की बात यह है कि यू रिफ्लेक्टेड अपॉन दीज थिंग्स. अ लॉट ऑफ टाइम्स प्रिविलेज्ड पीपल आर अनेबल टू अल्लाह रिफ्लेक्ट. कराता. मैं वही कह रही हूँ कि अल्लाह मियाँ ने मतलब रिफ्लेक्शन के काबिल अगर बना दिया तो ये सबसे अच्छी बात है. बिकॉज एट टाइम्स आप प्रिविलेज होते हैं और आप रियलाइज ही नहीं कर पाते कि आप कितने प्रिविलेज्ड हैं. वो प्रिविलेजेस को वैल्यू भी नहीं कर पाते हैं. अल्लाह का बड़ा करम है. और दिस इज समथिंग दैट आई ट्राई एंड टेल पीपल. द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज बी सेल्फ ऑब्सेस्ड एंड बी अ पर्सन हु पिटीज हिमसेल्फ. और मेरे साथ ये बुरा हो गया, मेरे साथ रोज़ अच्छा होता है वहाँ. आई गेट टू कम टू वर्क विद ब्रिलियंट पीपल. I get to meet brilliant people like you. I get to see brilliant people like Wasim, who's going to pursue, like, you know, so many things. I got your name right? So matlab, you know, these are the things that I get to do. यार किसको करने का मौका मिलता है.
रोज़ खड़े होके मुझे अल्लाह की हम्द करने का मौका मिलता है, बिकॉज़ मुझे नज़र आता है कि उसने मेरा हाथ किस तरह से पकड़ा था। मुझे नज़र आता है कि मेरी टीम कितनी अच्छी है, मतलब मुझे कितना मज़ा आता है इनके साथ काम करके। मुझे नज़र आता है कि कितने मतलब माँ बाप जो मुझे मिले, आई डोंट थिंक एनीबडी कैन आस्क फॉर अ बेटर सेट ऑफ पेरेंट्स, लाइक आई कैन नॉट. When I look at my kids, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah Ta'ala has given me such great kids. So when I look at these things, like what is it there to be not thankful of? Like मतलब वही वाली बात है, तुम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमत को ठुकराओगे, मैं क्या ठुकराऊँ, ठीक है. अच्छा, और जब मेरी गुर्बत का भी वक्त चल रहा था, मतलब मैं अपने चीज़ें नहीं अफोर्ड कर पा रहा था, ये कर रहा था, अल्लाह ने फिर भी पर्दे रखे हुए थे, तो उसका भी शुक्र था ना. अच्छा, और फिर मेरी तो वो भी थोड़ी सी वाली भी टेंडेंसी हो गई थी कि यार मुझे अंदाज़ा हो गया, मेरे बेटे ने मुझसे पूछा था ना कि बाबा मुहाफ़िज़ के लिए फिर व्हाट वर्कड, तो मैंने उससे कहा था कि यार टू बी ऑनेस्ट, कुन. जब अल्लाह ताला की तरफ से कुन आया ना, 7 साल से बिजनेस मॉडल यही था, नहीं चला. जिस साल चला 29 टाइम्स ग्रो किया हमने माशाल्लाह माशाल्लाह. और ठीक इस है. दरमियान में अल्लाह ताला सेंट एंजल इन्वेस्टर्स आल्सो, राइट? कॉन्स्टेंटली जब हिम्मत टूटने वाली होती थी, कोई आता था कहता चल थोड़ा सा और, थोड़ा सा. धक्के धक्के लगा लगा के. I have this beautiful relationship with Allah Ta'ala. मतलब I just love him. And the way you have also built Mohsin, I want to talk about Mohsin also. You know, मुझे समझ में आता है कि मुहाफिज़ की मोनेटाइजेशन, एज यू सेड, कि 7th ईयर के बाद यू गॉट कॉर्पोरेट क्लाइंट्स. मोहसिन पे भी आई गेट कि मोनेटाइजेशन कैसे हो रही है, बट टेल अस अ लिटिल बिट मोर अबाउट मोहसिन एंड व्हाट ट्रिगर्ड यू फॉर्म दैट, बिकॉज So समथिंग देखो, रिलेटेड टू पेरेंट्स. all of our endeavors, Muhafiz was an endeavor of love, is an endeavor of love. We love Pakistan, we love Pakistani businesses, and we want to make sure that nobody bullies them. ठीक है. We love Pakistanis, which is why we have Muhafiz, and which we're going to launch later this year, right? बहुत सारी कंपनियां जिनके साथ हम काम कर रहे थे, अब तुम्हें पता है पिछले 2-3 साल से पाकिस्तानी एकदम से ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर जाना शुरू हो गए हैं. अब तुम भी हो, तुम भी माशाल्लाह काम करी हो, कल को वसीम ने जाके पढ़ना है, सबके ख्याल यही आएगा कि जाके यार मैं अपने माँ बाप को किसके हवाले छोड़ के जाऊँ. हर एक को फीलिंग तो होती है ना यार, मतलब अब्बू मम्मी के पीछे ये नहीं है. और तुम टिपिकली देखो, ज़्यादा अच्छा बच्चा जो होता है, जो ज़्यादा परफॉर्म कर रहा होता है, अमूमन वो कोशिश करता है कि मैं बाहर जाऊँ और जाके वो वो करूँ. तो 13 मिलियन पाकिस्तानी है पाकिस्तान से बाहर. हमारे पास हमारे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स थे, उन्हीं में से अब ऑब्वियसली दे यूज्ड टू सी हाउ पैशनेट वी वर अबाउट सपोर्टिंग देम इन देयर बिजनेस, तो दोस्तियाँ बन जाती हैं. और फिर उनका ट्रस्ट भी था कि यार फात भाई और उनकी टीम जो है ना, हर चीज़ में लुक आफ्टर कर लेगी. तो उन्होंने बोलना शुरू किया कि फात भाई मेरी पोस्टिंग हो रही है, मैं बाहर जा रहा हूँ, तो कैन लाइक मुहाफिज लुक आफ्टर माई पेरेंट्स, राइट? So this is where Mohsin came out. We started looking after the parents of people by becoming a full spectrum service. What does that mean? हम उनके surrogates बन गए. हमने फिर, अब जब हम लोग कोई काम करते हैं तो हम लोग किसी चीज़ को फिर हल्का नहीं कर सकते, हम पागल भी हैं इस तरह से. तो हम लोगों को हमें ये होता है कि हाँ, अब हम बच्चों से, मतलब वो वाला सीन है कि हम तुमसे बेहतर काम करेंगे तुम्हारे माँ बाप के लिए. तो वो वाला सीन है कि हम रात में हम बहुत ज़्यादा प्लान करते हैं. Every parent is completely in our control, right? How many families are you taking care of right now? So देखो, मैं कंट्रोल की बात पहले समझा दूँ, सही है. हम लोग जब कंट्रोल की बात करते हैं, उनके इर्द गिर्द की जितनी इन्वायरमेंट है ना, हम लोगों को ये पता होता है कि अगर अंकल आंटी को कुछ हो गया ना, हमने कैसे भाग के पहुँच के क्या करवाना है. अब वो छोटी से छोटी चीज़ हो सकती है, उनको माचिस चाहिए तो माचिस भी मिल जाएगी. जो बेटा काम कर सकता है ना, हम वो करेंगे, लेकिन बेहतर करेंगे. बेटे को नींद आ सकती है, हमें नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग तो 24 घंटे ऑपरेशनल हैं. हम साल के 365 दिन ऑपरेशनल हैं. आप हमें किसी काम के लिए बुलाएंगे, लीगल होना चाहिए, हम जाके कर देंगे. अंकल आंटी को हॉस्पिटल लेके जाना है, हम लेके जाएंगे. हॉस्पिटल से डॉक्टर को घर लेके आना है, हम लेके आएंगे. एम्बुलेंस अरेंज करनी है, हम कराएंगे. फिजियोथेरेपी करनी है, हम करेंगे. नौकरों पे, मेड्स पे, सर्वेंट्स पे, ड्राइवर्स पे नज़र रखनी है, उनका बैकग्राउंड चेक करना है, हम करेंगे. आपको कोई काम पाकिस्तान में कराना है, आप पाकिस्तान आ रहे हो, पाकिस्तान से जा रहे हो, एयरपोर्ट पर रिसीव करना है, ये चीज़ें करनी है, पहले से करनी है. All of these things will be taken care of by us. You have a team of super trained, supercharged agents on the ground in Pakistan. That's the luxury I wanted people to have. यार, पूरी दुनिया में तुम लोग क्या क्या नहीं अचीव कर सकते हो, ठीक है. And there are certain opportunities जो आप कभी भी, मतलब
पाकिस्तान में शायद अभी आपको नहीं मिलेगी अगले 30 साल तक. यू इफ यूर लाइक वन ऑफ आवर कस्टमर्स इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट डिलीवरी फॉर ASML. ASML वो है जो दुनिया की हर चिप पे जिस लिथोग्राफी मशीन से वो सॉफ्टवेयर लिखा जाता है ना, वो उसके वाइस प्रेसिडेंट है. अब वो पाकिस्तान में आके किस चीज़ के वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे? He can't come back to this environment. He's there and he's doing so well. We've got his parents-in-law. Wow. सही है. So we're looking after them and they love the team because हम लोग उनके साथ एक दफ़ा अंकल बीमार हो गए थे तो मतलब two of our team members stood with him in the ICU for about 18 hours till the family got there. And ops excellence हम लेके इसी तरह आए हैं. यही मैं जानना चाहिए बिकॉज दिस इज लाइक continuously शिफ्ट मैनेजमेंट, मूड मैनेजमेंट. हमने अपनी टीम के लिए साइकोलॉजिस्ट रखे हैं, हमने अपनी टीम के लिए डॉक्टर्स रखे हुए हैं, हमने पेशेंट्स के लिए मतलब जिन लोगों को लुक आफ्टर कर रहे हैं हमने उनके लिए रखे हुए हैं. वी बिलीव इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट फॉर एवरीबडी कि यार हमारे लोग हैं. और फिर वी वांट दीज बेनिफैक्टर्स टू जो मतलब अब जैसा ये हैं जो ASML वाले हैं या जितने हमारे कस्टमर वी गॉट क्वाइट अ फ्यू अल्हम्दुलिल्लाह. they've all been those customers जो कि are achieving so many things on the global front and now they don't have to worry about their parents. You know, they know that somebody is going to look after them in a way that they could probably not manage. और ये काम ना आपको प्यार से कर सकते हो, ये ड्यूटी से नहीं हो सकता. आपको प्यार लाना पड़ता है इक्वेशन के अंदर. और वो लोग जो फील्ड पर हैं, जैसे आपने कहा कि हमने अपनी टीम के लिए भी साइकोलॉजिस्ट रखे हुए हैं, तो जो बंदा फील्ड पे है, मुस्तकिल काम कर रहा है, ये सब चीज़ें मैनेज कर रहा है, कहीं ना कहीं वो भी थकेगा. तो मुस्तकिल नहीं हम करवाते, हम लोग शिफ्ट्स में वर्क करते हैं. हाँ. मैंने एयरफोर्स के सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्टडी किया था. मैंने उस सिस्टम के ऊपर अपने सिस्टम को बेस किया है क्योंकि रैपिड रिस्पांस पाकिस्तान में इकलौता इदारा है वो एयरफोर्स देती है. ठीक है. वो 5 मिनट में उड़ के जाके लड़ते हैं लोगों से. सही है. सो देयर इन अ स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट रेडीनेस. मेरी टीम की साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग, उनकी ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट सारी की सारी मैंने इस मॉडल पे रख के की है कि क्विक रिस्पांस होना चाहिए, क्वालिटी रिस्पांस होना चाहिए एंड चीपेस्ट पॉसिबल रिस्पांस होना चाहिए. सो व्हेन वी टेक ऑन अ फैमिली वी मेक श्योर दे हैव अ सिस्टम दैट इंसुलेट्स देम फ्रॉम एवरीथिंग. फिर उनकी हर चीज़ को हम लोग आफ्टर करते हैं. We want them to be completely फिकर फ्री. वाओ. लेकिन ये सारी ऑपरेशनल एक्सेलेंस लाने में there must be some challenging stories. कुछ ऐसी स्टोरीज होंगी, कोई ऐसे मोमेंट्स होंगे जो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गए क्योंकि कितनी भी आप परफेक्शन लाने की कोशिश करें कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है. तो डू यू रिमेंबर एनी स्टोरी दैट यू फील कि वो मोमेंट बहुत चैलेंजिंग था आपके लिए? नहीं मैम, हमारा काम एम्पैथी वाला है ना. हम लोग प्रोएक्टिव चलते हैं ना. हम लोग चीज़ों को बहुत आगे से सोच के आते हैं. देखो मैं ना उन लोगों में से हूँ जो अगेन यू रीड टॉम क्लैंसी, यू विल अंडरस्टैंड माई माइंड सेट. इट वॉज ऑलवेज 2 steps 3 steps अहेड ओनली फॉर इमरजेंसीज. तो अगर तुम चल रही हो ना, कहीं बाहर जा रही हो, तो अगर तुमने कहीं घूमने के लिए जा रही हो तो आई विल नो एग्जैक्टली कि तुम्हें मैंने प्रोटेक्ट किस तरह करना है, तुम्हें मैंने इंसुलेट कैसे करना है. तुम किसी पार्टी पे जा रही हो या तुम कहीं पे भी जा रही हो, आई विल टेल यू कि इधर जिस तरह के लोग आ रहे हैं उनके प्रोफाइल कैसे होंगे, ये होंगे वो होंगे, किससे रिस्क हो सकता है किससे नहीं हो सकता. आई विल डिफेंड यू. राइट. मेरा दिमाग ही फंक्शन इस तरह से करता है और मेरी टीम का भी अब दिमाग इस तरह से फंक्शन करता है. वो पहले से सोचते हैं कि क्या क्या इवेंचुअलिटीज हो सकती. व्हाट्स वन फेलियर दैट चेंज द वे यू बिल्ड और लीड? कोई फेलियर की स्टोरी द वे आई बिल्ड और लीड. इट कैन बी लीडरशिप फेलियर, इट कैन बी एंटरप्रेन्योरशिप फेलियर. कोई ऐसा मेजर फेलियर याद है जिससे आपने बहुत रिफ्लेक्ट किया हो? यार ह्यूमन रिसोर्स फेलियर. सो दो बड़े मज़े के फेलियर हैं. एक बड़ी शुरू में मुझे मुहाफ़िज़ करते हुए ये क्लियर हो गया था कि जस्ट बिकॉज तुम अच्छा काम कर रहे हो इसका मतलब नहीं है कि इसमें अल्लाह की नुसरत और बरकत और सारी चीज़ें आ जाएंगी और हर बंदा उसी तरह फील करेगा. ठीक है. यू चोज दिस, सो इट डजंट मीन कि एवरीबडी थिंक्स कि आपको मतलब आप आएँ तो सबको आपके लिए जगह दे देनी चाहिए और आप इन्वेस्टर के पास जाएँ तो आपको मिल जाएगा. इट इज़न्ट ईजी. आपकी फ़ाइट है, आपने स्टार्ट की है, आप ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. किसी ने आपसे ना इम्प्रेस होना है, ना आपको ज़रूरत है कि कोई इम्प्रेस हो. आप अपने काम करने के लिए आए और आप अपने काम में बहुत खुश हैं. अगर आप अपने काम में सेटिस्फैक्शन नहीं चूज़ कर सकते ना तो आपको इंटरनली एक्सटर्नली कोई भी सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकता.
इंटरनली इंट्रिंसिकली इफ यू नॉट सेटिस्फाइड तो काम नहीं हो सकेगा. So stop seeking validation. हाँ, सबसे पहले. वैलिडेशन तो जो सीख रहा है वो वैसे ही ऑफ चल रहा है. मतलब अगर तुम्हारे लिए इर्द गिर्द के लोग मैटर करते हैं तो फिर तो काम ही नहीं चल सकता. आई वॉज टोल्ड बाय समबडी व्हाइल लीविंग द हाउस टू साइन एन MOU, somebody very मतलब supposed to be somebody very respectable, कि ये नहीं होगा, तुमसे हो नहीं सकता. And I was like, लेकिन उसके अलावा कुछ समझ भी नहीं आ रहा ना, तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ. ठीक है, कुंजैन बोले कुछ भी बोले, लेकिन करना नहीं आता कुछ और. अब यही आता है और यही करना है. तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट. दूसरा, आई थिंक वन ऑफ द मेजर थिंग्स दैट आई लर्नड वाज डिसाइफरिंग कि कितने लोग आपके साथ चलने वाले हैं और कितने, मतलब देखो पता है, टैलेंट मैनेजमेंट, हायरिंग एंड लेटिंग गो, these are very tricky things, and LinkedIn confuses you a lot. कल्चर ऐसा है और बच्चे की तरह ट्रीट करना है और ये करना है. नहीं यार, प्रोफेशनल की तरह भी ट्रीट करना है और एक्सपेक्टेशन भी रखनी है. शुरू में मैं तुम्हें बताऊं, मैं 5-6 साल जब मैं ये गुर्बत में चला रहा था, आई बिकेम अ साइकोलॉजिकल चेयर लीडर कि देखो यार हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमें ये करना है वो करना है. व्हेन वी स्टार्टेड गेटिंग मनी एंड वी स्टार्टेड पेइंग ग्रेट मनी, sending people to international trips and all, I still was being a cheerleader with them when I should have just gone into accountability mode कि bro we're paying you now, so मतलब do it, ये करो, और नहीं करते तो perform करो, बाहर जाओ. And sometimes it took a long time for me to clear out people, and that's one of the major things that I messed up on. मुझे ना so with the benefit of hindsight, I've realized कि it is much better if you're very clear कि हमारा साथ है या नहीं है. पर वो शुरू में तो नहीं पता चलता ना. देखो मैं तो बिल्कुल सीख रहा था, मैं तो मार खा खा के सीख रहा था ना, मुझे तो बिल्कुल ही चीज़ों का. और मैं तो बता रहा हूँ, 7 साल आप चेयर लीडिंग करो ना, आप हर एक को देख के सिर्फ ये समझते हो कि यार नहीं चल जाएगा, बस थोड़ी सी हिम्मत पकड़ो, देखो चल जाएगा, थोड़ा सा आप साथ रहें, थोड़ा साथ रहें. दैट कैरीड ऑन फॉर द नेक्स्ट 3 years ऑल्सो. पर अभी भी आप इतनी जल्दी तो नहीं प्रिडिक्ट कर सके. अब आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यार ये बंदा नहीं चलेगा मेरे साथ में. अब इंटरव्यू के प्रोसेस के अंदर पहली दफ़ा प्रॉपर HR की टीम है, लोग हैं, मतलब साइकोलॉजिस्ट बैठता है, चीज़ें होती हैं. सही है. और फिर भी अगर कोई बंदा न समझ आए, होता है लोग, सम पीपल लाइक मी गिव ग्रेट इंटरव्यूज, ठीक है, एंड यू गेट रियली कॉट अप इन दिस एंड देन यू रियलाइज नो, फ्लफ था. ठीक है, देखो वहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि लोग अच्छे नहीं होते, लोग हर चीज़ के लिए अच्छे होते हैं, हर डिफरेंट चीज़ों के लिए अच्छे हो सकते हैं. कोई इंसान बुरा नहीं होता, फिट नहीं है हमारे लेकिन culture हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, क्या ये घोड़ा इस दौड़ के लिए बना है या नहीं बना है, वो डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है. एंड इसमें कोई दिल आज़ारी नहीं है अगर कोई छोड़ के चला जाए. ना इसमें दिल आज़ारी होनी चाहिए कि अगर आप किसी से रिक्वेस्ट करो कि देखो यार तुम टूट जाओगे ये करते हुए, मत करो, तुम कहीं और चले जाओ. इसमें कोई दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए. दिस इज़ प्रैक्टिकल. As a business, you also have your answers that you're answerable to your shareholders as well. यही गारफील्ड और फराज खान जिन्होंने कभी मुड़ के पैसे की वापसी की बात की, मुझे अभी भी फील होता है कि इनको रिटर्न्स मिलने चाहिए. ठीक है, मेरे पास ऐसे ऐसे लोगों ने इन्वेस्ट किए वहाँ, जो मतलब who've just invested in the fact कि यार we believe in you, how can I let them down? It's not fair to them कि मैं एक साइड को रिवॉर्ड करने के चक्कर में एक साइड को डिप्राइव करूँ. एंड दैट्स व्हाट आई लर्नड कि नहीं, हर एक को बराबर लेके चलना है. ठीक है, समबडी इज परफॉर्म कर रहे हैं. अब ये कहते हैं ना आजकल, यार इतनी बेदर्दी से ले ऑफ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया. देखो सबसे पहले असेस करो तुम ले ऑफ हुए क्यों थे. यू आर प्रॉब्ली नॉट एबल टू बिकम वन ऑफ द टीम मेंबर्स. कोई भी चलते हुए पुर्जे को निकाल के बाहर नहीं फेंकता है. अगर आप किसी कंपनी से बाहर हुए हो, किसी पॉइंट पे भी निकाले गए हो, या आपको बोला गया हो कि यार मे बी दिस इज द टाइम और मे बी दिस इज नॉट द राइट थिंग फॉर यू टू डू, थैंक यू बेटा, तो यू शुड कंटिन्यू एंड कैरी ऑन. बट दैट इज ऑल्सो अ टाइम ऑफ इंट्रोस्पेक्शन कि यार मुझे क्यों बोला गया. या अगर कोई बोलता है कि मैं जा रहा हूँ और आप रोकते नहीं उसे, उसको भी सोचना चाहिए कि आप क्यों नहीं रोक रहे. ठीक है, क्योंकि आप नहीं रोक रहे. वेरी इंपॉर्टेंट. Very important. This isn't personal. We're here to deliver something higher. Yeah.
And for that, we need people who can assimilate in that lifestyle. It's not for everyone. I've seen people जिनको आप पूरी दुनिया को उनके ऊपर पैसा लगा दो, उनके ऊपर खर्चा कर दो, उनको एक्सपोज करा दो चीज़ों पे, किसी और को ग्रो नहीं करने देंगे. खुद बड़ा पेड़ बन जाएंगे नीचे से. मतलब मैं कोशिश हमेशा ऐसे ही करता हूँ कि जो मैं खुद एक्सपोज हो रहा हूँ मैं अपनी टीम को भी एक्सपोज करूँ. लाइक जब हम इजिप्ट लॉन्च कर रहे थे तो आई सेंट समबडी एल्स टू गो लॉन्च इट एंड देन आई वेंट. व्हेन हम अर्जेंटीना लॉन्च कर रहे थे हमने किसी और को भेजा था. केनिया लॉन्च कर रहे थे किसी और को भेजा था. वरना टिपिकली इट वाज वन ऑफ दोस ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मैं खुद जा सकता था. छोटी ऑर्गेनाइजेशन थी ना. आई कुड हैव गॉन फर्स्ट. आई डिडंट. आई सेंट देम बिकॉज आई वांटेड देम टू बी एक्सपोज्ड. So I've always tried to build that organization. But an organization does not work with only one. ताली एक हाथ से नहीं बजती. एक बंदा बांसुरी बजाते हुए नहीं कुछ कर सकता. You need a full band to work. तभी आपकी फिर एक प्रॉपर सिम्फनी बनती है. And you were so right कि a lot of times लोग इंटरव्यू में बहुत अच्छा खेल जाते हैं but after the interview they're not proved a good resource. तो वो तो फिर अब थोड़ा सा बाद में काम देखकर ही पता लगता है उसमें. यू रियली कांट प्रेडिक्ट. मुझे ना ऑनेस्टली सबसे बड़ी जो ना एक चीज़ लगती है कि मैंने ना जब नौकरी स्टार्ट की ना तो ऑब्वियसली मैं फ़ौजी बैकग्राउंड से आया था. फ़ौज की ज़िंदगी उस ज़माने में बड़ी डिफरेंट थी. अब तो बहुत डिफ़िकल्ट हो गई है. मतलब अगर अब तुम देखो तो हमारे लड़के कॉन्स्टेंटली जो फ़ौज के होते हैं वो घर ही नहीं आ रहे होते या रात में 12-12 1-1 बजे आ रहे होते हैं. लेकिन जो हमारे अब्बा लोगों के ज़माने की या दादा लोगों के ज़माने की जो फ़ौज थी वो तो बड़ी डिफरेंट थी ना. दोपहर में घर आते थे, सोते थे, शाम में गेम्स पे जाते थे, सुबह पीटी पे जाते थे. मतलब शाम में फैमिली के लिए टाइम होता था, चीज़ें होती थी. तो जब मैं नौकरी करने के लिए आया तो मैं रात में सुबह 9 बजे जाता था. और स्टैंड में ऑन अ गुड डे आई कम होम एट 9:30 or 10. इन आयल साची एंड साची ऑन अ गुड डे I'd come home, I'd go at 9, come home at around 12 or 1 at night. तो मेरे अब्बा ने एक दिन बुला के बोला बेटा तुम तो नज़र ही नहीं आते, इतनी से ये स्किल है, ये कर रहे हो. तो मैंने बोला अब्बू देखें एक मिनट, एक तो ये मतलब ऐसे होगा नहीं. दूसरा आई नीड टू एक्सेल. मैं पहले 10 से 1 साल इतनी मेहनत करूँगा कि मुझे हर चीज़ के बारे में हर चीज़ आती होगी. मैं आजकल भी बच्चों से बोलता हूँ पहले 10 साल एक्सप्लॉइट हो. बिकॉज जब एक्सप्लॉइट होगे तो तुम किसी की क्रच बनोगे. जब क्रच बनोगे तो तुम्हें काम समझ आ जाएगा. वो पुराने ज़माने में जो वो होती थी ना. और अब ठीक है नहीं मानना ना मानो, बहुत लोग नहीं मानेंगे, बहुत लोग कैंसिल ही कर देंगे इस चीज़ को. लेकिन अगर तुम पहले 10 साल अपने आप के अंदर और पढ़ा के यूनिवर्सिटीज़ कुछ नहीं निकालती. ट्रस्ट मी नहीं निकालती. यू डोंट नो एनी थिंग. आई हैव बिन देयर. यू डोंट नो एनी थिंग. सही है. आई हैव सीन बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ प्रोड्यूस किड्स who don't know anything about real life. Real life first 10 years teaches you. जब आप बाहर निकल के देखते हो और आपको पता चलता है गर्मी में ऑपरेट करना कितना मुश्किल है, सर्दी में ऑपरेट करना कितना मुश्किल है, लियारी में ऑपरेट करना कितना मुश्किल है, गडानी में ऑपरेट करना कितना मुश्किल है. ज़मीन की डायनामिक्स ही डिफरेंट है. योर आइडिया ऑफ द वर्ल्ड एंड हाउ द वर्ल्ड रियली फंक्शंस आर टू डिफरेंट थिंग्स. ठीक है. एंड आई हैड टू एजुकेट माई पेरेंट्स ऑन दिस कि अब्बा मतलब मेहनत करनी पड़ेगी. हैरानी की बात देखें ये है कि यू आर अवेयर ऑफ दिस थिंग. अब जैसे हम जनरली क्योंकि आई रेड किताबों में नज़र आता था कि जो सक्सेसफुल होते हैं वो पहले 10-15 साल किस तरह से अप्रेंटिस लग के खोते की ज़िंदगी गुजारते हैं. कितना खज्जल ख्वार होते हैं, कितना चीज़ों को पीछे गड़ जाते हैं, तड़प जाते हैं, वो जाते हैं. और हर चीज़ के ऊपर शुक्र ज़रूर कर रहे होते हैं. यार मैंने ये सीखा, मुझे ये सीखना है. rather than complaining. हाँ कि मुझे तो सिर्फ ये इतना कर रहे थे, मुझे सिर्फ इतना ये कर रहे थे, मुझे तो ये 15 दिन काम करेंगे उसके बाद एकदम से जैसे मतलब आप हल्की सी तारीफ़ कर दो तो उनको लगता है जैसे वो दुनिया के ऊपर छा गए. नहीं ऐसा नहीं हुआ है. इस एक्ट पे तारीफ़ हुई है. आई एम सॉरी मोहम्मद, मतलब मैं इस तरह की बातें कर रहा हूँ, लोगों को ये थोड़ी सी ऑफेंसिव भी लगेंगी कि क्या बात कर रहा हूँ, बट दिस इज़ द वे द वर्ल्ड वर्क्स. That's what I was telling you when I interviewed a lot of CEOs. Like जो टॉप CEOs हैं, they're like, don't tell me about balance. There are आप और ख़ास तौर पे यंग प्रोफेशनल्स को ये कहते हैं कि शुरू के 8-10 साल 15 साल तुमको अपनी जान मारनी पड़ेगी, बैलेंस की बात नहीं करनी है. ऑफ कोर्स देयर आर डेज जब आप बैलेंस को शायद परसू भी कर रहे होंगे, पर आपको 80-90% टाइम्स आपको अपना रगड़ा मारना ही पड़ेगा. सो जब भी मैं वो क्लिप्स लिंक्डइन पर लगाती हूँ, आई सी अ लॉट ऑफ बैशिंग कमिंग इन फॉर एवरी CEO हु टॉक्स लाइक दिस. It's okay.
And It's absolutely okay. These There is are the this people mindset, who you will know. never be part of tier 1 organizations. देखो हर बंदा ना दुनिया में निकल के सीईओ नहीं लगता. कुछ लोगों के लिए ये वाकई में काफ़ी है कि अल्लाह का शुक्र. देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ. जब मैं शारजाह में गया ना तो उस वक्त मैंने सुना कि एक बंदा आया है हु इज़ द यंगेस्ट हेड ऑफ कंज्यूमर बैंकिंग एट 32, एज 32. ठीक है. आई वॉज 23 और मेरे साथ उसी वक्त एक और लड़का भी इंडक्ट हुआ था. तो खाने का वक्त मैं कुछ सोच रहा था ना इसी चीज़ के बारे में. मैंने बोला यार देखो मतलब वो बंदा लगा है ना तो वो कहता है कि यार अभी तो नौकरी लगी है अल्लाह का शुक्र करो बस इसी के अंदर ये वाली चीज़. मैंने बोला तुम करो मैं भी करूँगा. लेकिन मेरा ना साथ साथ ये भी है कि मैंने 30 पे कैसे बनना है. उसके लिए शायद वो सही था. ही ग्रू अप दैट वे, आई ग्रू अप दिस वे. I don't understand mediocrity, and I understand that there's a price to pay for not being mediocre, yeah. and it's okay. देखो मेरे काम में तो मुझे इम्पैक्ट बहुत मिलता है ना. मेरे काम में तो मुझे बड़े डायरेक्ट नज़र आता है कि जब अंकल आंटी मुस्कुराते हैं या मेरे क्लाइंट्स मुस्कुराते हैं या कुछ होता है कि यार मतलब मज़ा आया. ठीक है. एंड दैट्स अ हाई फॉर मी. सही है. मुझे पता है कि आई एम गोइंग टू बी दैट डिपेंडेबल पर्सन जिसके ऊपर लोग लीन करेंगे और आई विल हैव देयर बैक एंड आई लाइक इट. आई लाइक बीइंग देयर फॉर पीपल. सही है. आई लाइक ओनिंग अदर पीपल्स प्रॉब्लम्स. सही है. एंड माई टीम डज टू. बट दैट टीम इज़ अ वेरी सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल. अगर तुम उस टीम में आके बिल्कुल स्किन लेवल पे ऑपरेट करना शुरू कर दो यू वोंट सर्वाइव विद अस. And it's all right if you cancel us. It's okay. Perfectly acceptable. Yeah. But you will need us. आपने फिर अपना बेंचमार्क ही वो रखा हुआ है ना, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल सेट सर्टेन स्टैंडर्ड्स फॉर देयर सेल्फ. फॉर एग्जांपल इफ समबडी इज एट द एज ऑफ 32 एंड दे बिलीव कि बस ये मेरे लिए स्टैंडर्ड है तो वो मीट करेंगे. आपने अगर अपने लिए एक बेंचमार्क अलग ही स्टैंडर्ड को रखा हुआ है तो फिर आप उसके लिए चेस करेंगे, फिर चाहे आपको कितना भी रगड़ा लगाना पड़े उसके लिए. देखो हम ना हम लोग बड़ा एनवियस होते हैं अबाउट सो मेनी कंट्रीज क्रिएटिंग $1 billion कंपनीज. किसी भी $1 billion फाउंडर और उसकी फाउंडिंग टीम को देख लो. अगर वो खपती नहीं थे ना you're challenging the odds of nature. So to go against the grain, you need to be playing at a much better level. I'm trying to create, like I know for a fact that both of these companies have the, so मुहाफिज का जो global competition हो सकता है does $10 billion in revenue. Why wouldn't I want to play at that level? Or better. आपने अपने लिए बेंचमार्क अच्छा सेट कर लिया. हाँ तो मतलब मैं उससे नीचे क्यों लेकिन सोचूं? ये पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत कम, बिकॉज आपने जैसे कहा एक्सीलेंस चेस करते हैं. दैट इज़ वाई यूर एबल, एंड आपने अपने लिए एक स्टैंडर्ड भी अच्छा रखा हुआ है. Because I've had a privileged background. Understand this, Maham. I have more responsibility. I am more responsible. I have to win. I always tell these people, my investors also, कि मेरे लिए fail करना is not an option. I'll die trying. Because why do you think I defend businesses? I want them to succeed. I want to be the safety net under which they are operating, ताकि इनके ऊपर जो unnecessary strain आता है वो ना आए. वो क्यों करता हूँ मैं? वो इसलिए करता हूँ बिकॉज इन सारी कंपनियों के सक्सीड करने से एक एवरेज पाकिस्तानी को होप मिलेगी. Yes. And this is what our country needs right now. Japan is not Japan because the government fixed something. Yes, MITI did something. But if it wasn't for Akio Morita and all of these people at Honda, Mitsubishi, you name the companies, Suzuki, or any one of these companies, every single employee who was willing to go out and do something, if they did not do it, Japan would be nowhere. So together we have to strive for excellence. ये वो वाली छोटी छोटी चीज़ें जो आप में डिसिप्लिन लेके आती हैं कि यार सिग्नल पे मैं रुकूंगा, मुझे नहीं रुकना चाहिए. सब जा रहे हैं, मुझे रुकना चाहिए. क्यों? क्योंकि मैं पाकिस्तान हूं, ये नहीं है. दिस इज पाकिस्तान, नॉट देम. एक पाकिस्तानी में और एक जंगली में ये फर्क है कि उसका सेल्फ कंट्रोल है.
तुम किसी भी मुल्क को देखो जो बनाए हैं, दे हैव बीन मेड ऑन द शोल्डर्स ऑफ देयर चिल्ड्रन, ऑफ देयर एंटरप्रेन्योर्स। अमेरिका की सबसे बड़ी फायदा ये था कि उसके फाउंडिंग फादर्स में टिपिकली लोग बिजनेसमैन थे। हमारे यहाँ लिटरली पॉलिटिशियन इज अ परसूट, इट्स अ प्रोफेशन। पाकिस्तान डजंट नीड पॉलिटिशियंस, पाकिस्तान नीड्स सर्वेंट लीडर्स, जिनको सर्वेंट बनने में मजा आए, जिनको नशा आए कि दूसरा सक्सीड हो जाए। वो मेरा बेटा कहता है ना कि हाँ बड़ी मेहनत करें वो करें, तो मैं ऐसे अच्छा, और ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज पीपल हु जोक्स अराउंड, सो आई ऑलवेज टेल हिम हाँ मैंने सिर्फ 2 का नहीं सोचना, मैंने 108 मिलियन बच्चों का सोचना है। तो आई नीड टू मेक श्योर कि जो तुम दोनों को मौके मिल रहे हैं अब वो उनको भी मिले, बिकॉज अल्लाह ताला ने मुझ पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है। आई हैव टू लुक आफ्टर दीज थिंग्स, I have to be but I have to make these 2 endeavors a success and everybody associated with it. देखो मेरे लिए ना पता है सबसे बड़ा सुकून ये है कि विद मोहसिन पाकिस्तानी टैलेंट गेट्स एक्सपोज टू द बेस्ट job opportunities globally because they don't have to worry about their parents anymore. We will look after them. ठीक है? Oh yes. सही है. With मुहाफिज businesses don't have to worry. बेखौफ व खतर, विदाउट एनी फिक्र जाओ, जो अचीव करना है करो। मैं खड़ा हूँ तुम्हारे पीछे, खड़े हो, और मेरी टीम खड़ी हुई है। ये वक्त है पाकिस्तान नीड्स टू एस्टैब्लिश इटसेल्फ फर्मली। बट आई लव द फैक्ट जब आप मीडियोक्रिटी के बारे में बात कर रहे थे, यू सेड कि वी डोंट चेज एक्सीलेंस। अभी हम बहुत सारे मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं बिकॉज इंटरनेशनल कुछ प्रोडक्ट्स बॉयकॉट भी किए गए। तो आई वाज वंडरिंग कि हम ये कहते तो हैं कि मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करो, और ब्रांड्स भी इस तरह से सेंटिमेंट्स पर खेलते हैं, बट दे देमसेल्व्स लॉट्स ऑफ ब्रांड्स डू नॉट चेज एक्सीलेंस। वो प्रोडक्ट उस अगर वो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो सब स्टैंडर्ड सर्विस दे रहे हैं, देन दे एक्सपेक्ट कि नहीं मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करो। तो आप सिर्फ इमोशंस के बेसिस पे सेल्स लाना चाहते हैं। आई रिसेंटली वॉच्ड अ मूवी इन सिनेमा एंड आई वाज वंडरिंग कि यार कहा जाता है कि पाकिस्तानी मूवीज़ को जाओ सपोर्ट करो, सिनेमा में जाके देखो, बट दे आर अनएबल टू एंगेज जस्ट टिल 2.5 hours or 3 hours, देखो उनको अपना स्किल प्रैक्टिस करने के लिए भी तो कुछ नहीं मिलता ना। एक मूवी बनाते बनाते कमर टूट जाती है ना, तो एक ही बना सकता है, और डिस्ट्रीब्यूशन इतनी बड़ी नहीं है कि उनको पैसे अच्छे मिलेंगे। ये तो सेल्फ मतलब दिस इज समथिंग विच इज़ अ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस इटसेल्फ। तो मेरी अगर बात करती हो, मैं तुम्हें बताता हूँ मुझे मोहसिन में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है पाकिस्तानी बिजनेस। पाकिस्तान में कुछ अच्छा नहीं होता, पाकिस्तानी कुछ अच्छा नहीं करता, पाकिस्तानी बिजनेस कुछ अच्छा कर ही नहीं सकती। ये चैलेंज है जो मुझे ओवरकम करना होता है। व्हेन आई एम फर्स्ट कन्वर्टिंग अ कस्टमर के ब्रो आई हैव गॉट योर फैमिली, मेरी ड्राइव जो बनती जा रही है, नहीं पाकिस्तानी बिजनेस तुम्हें वो वैल्यू देगी जो तुम्हें दुनिया में कोई वैल्यू नहीं दे सकता। मेरी बिजनेस देगी, मुझे बाकियों का नहीं पता, लेकिन मोहसिन तुम्हारे साथ तुम्हारी खुशी गम में तुमसे ज़्यादा खड़ा हुआ होगा। दैट इज़ माई श्योरिटी। सो पाकिस्तानी बिजनेस, पाकिस्तानी कुछ नहीं अच्छा कर सकता। मैं तुम्हें 100 पाकिस्तानियों से मिलाऊंगा जो मोहसिन की टीम के अंदर है, जो तुम्हें दिखाएंगे कि पाकिस्तानी कितना अच्छा काम कर सकता। तुम्हें पाकिस्तान पे ये यकीन नहीं है, मोहसिन इज़ अ पाकिस्तानी प्रोडक्ट। इट इज़ हेयर टू सर्व पाकिस्तानीज in Pakistan. I will show you कि पाकिस्तान can be a better place if you have Mohsin with you. देखो हमारी ड्राइव्स हैं, हमारा अपना एम्बिशन है। मेरा अपना एम्बिशन ये है कि मैं जो पाकिस्तान के साथ स्टिग्मा एसोसिएटेड है कि पाकिस्तानी अच्छा नहीं काम कर सकता, पाकिस्तान में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, पाकिस्तानी बिजनेस नहीं अच्छी कर सकती, आई विल चेंज इट ना। मैं जब बाहर जाता हूँ, कहीं पे भी जाता हूँ, तो मुझे क्यों सेकंड क्लास थर्ड क्लास सिटीजन बनना पड़ता? मैं इसी एक्सीलेंस को चेज कर रहा हूँ ना। मैं उधर जाके भी तो वही डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ। मैं पाकिस्तान में क्यों नहीं डिसिप्लिन हो सकता? मैं एक चीज़ को, अब तुमने मुझे इस मग में चाय सर्व की है, मैं तुम्हारे इस मग को इस जगह पे रखने के बजाय इसकी साइड से मैं पीऊँ तो उसकी साइड से चाय रोल डाउन कर रही हो, ये कर रही हो, ये जुल्म है ना। मैंने तुम्हारी चीज़ को ख़राब किया, मैं क्यों करूँ? जब मैं कोई सरकारी महकमे में जाता हूँ और मैं अगर सरकारी ऑफिसर हूँ,
और मैं अगर अपने बच्चे के बारे में सोचना शुरू कर दूं, मैं हमेशा ये वाली बात करता हूँ मोहम कि अगर आपको पाकिस्तान के हर बच्चे में अपनी औलाद, अगर हर बुजुर्ग में आपको अपने माँ बाप, अगर हर मर्द और औरत में अपने बहन और भाई नहीं नज़र आते ना, पाकिस्तान जब तक सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक ये चीज़ हो नहीं सकती। हम लोग अपने लिए जीना शुरू हो गए, हम लोग ये वाली कौम ही नहीं थे। हम हमेशा से वो वाली कौम थे जो एक दूसरे के लिए जीते थे। हमें एक दूसरे के लिए जीना ज़रूरी है, हमें एक हायर आइडियल के लिए जीना ज़रूरी है। हम लोग किस चीज़ में रह गए हैं? पे कितना कर रहे हैं, पे क्या करेंगे? अरे यार ठीक है, मैं तुमसे रोज़ अपना घुटना दबाऊंगा, तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा, करने काम ही करोगे ना, कि किसी ना किसी चीज़ में एक्सेल करोगे ना। मीनिंगफुल काम। मुझे बताओ, तुम्हारे माँ बाप ने, एंड आई फील अ लॉट ऑफ माँ बाप हैव डन रॉन्ग हियर ऑल्सो। बच्चों को ये सपोर्ट करने के बजाय कि बेटा पहले 10 साल मेहनत करो। गोरे में और हम में या किसी भी कौम में और हम में फ़र्क ये है, वो रेज करते हैं कि बेटा तूने परफॉर्म करना है। हाँ, दे गो फॉर एक्सीलेंस, Yeah. विच इज़ वाई दे आर एक्सेलिंग एज नेशंस। हमें चाहिए वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स है, लेकिन हम उसके लिए काम नहीं करना है। हमें सारी वो चीज़ें चाहिए जो वर्ल्ड क्लास हो, लेकिन हमने उसके लिए काम नहीं करना। ऐसे नहीं होता यार, वो जन्नत में होगा। पहले जन्नत अर्न तो कर लो ना, उसके लिए भी मरना पड़ता है। मौत के लिए प्रिपेयर कर लो। wonderful. So I think there's a lot one can learn from you. I learned a lot from you off camera as well. I want you to share one piece of advice before closing the interview. There are a lot of advices during the podcast you have shared, but young entrepreneurs के लिए specifically कोई एक piece of advice. 2 स्टेप दे दूं? मुझसे एक नहीं होता। ठीक है? पहली चीज, whatever religion you follow, but especially if you follow Islam, कुरान को रोज पढ़ो, अपनी ज़बान में पढ़ो। वो तुम्हें बहुत रैपिडली क्लियर कर देगा कि राज़िक कौन है। तुम्हें बहुत रैपिडली क्लियर कर देगा मालिक कौन है, खालिक कौन है। तुम्हें इंसान की ग़ुलामी से निकालेगा, अल्लाह की ग़ुलामी में डालेगा। तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाएगा, तुम्हें हर चीज़ तुम्हारे लिए बेहतर करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि जगहों पे लिखा होता था अल्लाह देख रहा है। वो पहले दीवारों से गायब हुआ, अब हमारे दिल से जा रहा है। ये याद रखो, हमारी हर चीज़ को अल्लाह देखता है। हर लम्हा इस दुनिया में अल्लाह इज़ वॉचिंग। बहुत लोग नेगेटिव हो जाते हैं, चीज़ें हो जाती डजंट चेंज द फैक्ट दैट ही इज़ वॉचिंग। जिसको आजमा रहा है उसकी आजमाइश में उसको देख रहा है, जिसको नवाज रहा है उसकी दिन में वो नवाजा जा रहा है उसको देख रहा है। ठीक है? अपने आप को ग्रेसफुली रखो। जब कुरान पढ़ते हो ना तो 2 चीज़ें बड़ी क्लियर इस्टेब्लिश हो जाती हैं। अल्लाह ताला ला इलाहा इल्लल्लाह चाहता है इन एवरी वे एंड फॉर्म, एंड दूसरा ही वॉन्ट्स ग्रेस फॉर यू। तो ऐड ग्रेसफुली। इसी के अंदर रहते हुए जब आप इस चीज़ को देखते हो कि जब आप धंधा भी करते हो ना, और कब की किसी के दूसरे के फेवर में बेहतर कर देते हो, तो आप, अब मैं अगर तुमने मुझसे 10 रुपये की चीज़ मांगी और मैं तुम्हें 15 रुपये की चीज़ दे रहा हूँ ना, तो मैं 10 रुपये तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन 5 रुपये मैं अल्लाह के साथ बिजनेस कर रहा हूँ। तो मैं तुमसे तो बिजनेस करने ही नहीं आया था ना वहाँ दुनिया में। मैं तो अल्लाह से मिलने आया था, अल्लाह को ढूंढने आया था। सही है? Yeah. दूसरी चीज़, किताबें पढ़ो। ये नहीं करोगे तो फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। Started lovely. Thank you so much, Fahad. Thank you for being with us. Thank you for enduring me. It's it's been a pleasure. It's been fun, and I wish you the best of luck with everything. I hope you have a lot of great interviews. I hope you do a lot of deep research on them, and I hope you become the Oprah Winfrey of Pakistan, Inshallah or Taala. maybe she aspires to become you someday. So it could be either way. High hopes. Right? Thank you so much. My pleasure.